تو دوسرا کرنتھس کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ سب پیچھے میرے کہیں، اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ہلیلویا۔ دوسرا والا ہے یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 3 آیت۔ 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور آخری حوالہ ہے فلپیوں کے نام خط ہے، اس کا 4 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہلیلویا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر، سب لوگ بیٹھ جائیں خدا یسوع کی پریزنس میں۔ کلام مقدس میں سے آج ہم نے پڑھا ہے، جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق کیا ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نہیں ہو گئی۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ میں کوئی ایسی نئی چیز ہو جو دنیا میں نظر نہیں آ رہی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ واقعی نئے مخلوق ہیں، آپ نیو کریچر ہیں، نیو کریشن ہیں، واٹ ایور جو کچھ بھی ہے۔ آپ میں کون سی ایسی نئی چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے دوسروں کے اندر نہیں ہے؟ اگر آپ واقعی ایماندار ہیں تو دوسرے ایمانداروں کے درمیان جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ میں کون سی چیز ہے جو ان میں نہیں ہے اور آپ میں ہے، اور لوگ فرق کر سکتے ہیں، اچھا یار یہ ہے، کوئی ایسی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نئے کب بنیں گے؟ سوالوں کا ہاں نہ جلدی جلدی بات جواب دو، اگو گلا نہیں کرنی ہے، صرف جو پوچھا وہی دسنا ہے۔ ہلیلویا۔ دنیا کے لوگ کاروبار کی فکر میں رہتے ہیں، تو آپ ایماندار کس کی فکر میں رہتے ہیں؟ بولے میں دعا بھی کرنا، میں یہ نہیں پوچھا تو دعا کرنا، میں چرچ بھی آنا، میں یہ بھی نہیں پوچھا چندہ بھی دے دینا، میں بھی نہیں پوچھا، منو آج تو بڑی آدھے بھائی صاحب جی، میں نہیں پوچھا، میں کی پوچھا؟ تسی کیڑی فکراں چ رہندے ہو؟ دنیا دی فکراں۔ دنیا دی فکراں نے اس لیے تسی لیٹ آندے ہو، دنیا دی فکراں نے اس لیے چرچ بھی جدوں دل کردا ادو ہی آ جاندے۔ دنیا دی فکراں نے اینوں کہندے دنیا دی فکراں، اج نہیں چرچ جانا، کیوں؟ اج فلانے دی شادی آ گئی، یا فلانے دا چلیسواں آ گیا، اج میں میرے نال ہو گیا، اج میرے نال وہ ہو گیا، تواڈے نال یہی ہوندا رہنا، اس تو بھی برا ہونا۔ ہلیلویا۔ ہماری کوئی بنیاد کو نہیں ہے، جنہیں تسی ایماندار بیٹھے ہو، ہر پادریاں دی نہیں بنیاد تواڈی کی بنیاد ہونی ہے، تسی ایویں پتہ نہیں اپنے وچ کی بنی پھردے ہو۔ تو کسی نال میری گل ہوئی کہ تو میں کہا آنے والے دن تو اس سے بھی برے نے، تے انہوں نے کہا نہیں آنے والا دن بڑا اچھا ہے، آنے والے حالات بڑے اچھے ہیں، خداوند بڑی بلیسنگ لے کر آ رہا ہے، وہ یہ لے کر آ رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا لالچ بھرا ہوا ہے، اتنی گندگی سارے ذہناں وچ بھری ہوئی ہے، اسی پوری بائبل میں ایک سائڈ تے چھڑ دینا، وہ ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح، بس اے ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی برکت میرے لیے آنے والی ہے۔ بھائی کتوں آنے والی ہے؟ جدوں کہ کلام چ لیا کہ آخری ایام میں برے حالات آئیں گے۔ کیوں ہم یہ پریچ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بائبل میں نہیں ہے، اور ہم وہ پریچ کرتے ہیں جو بائبل میں نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو اچھا لگے، تاکہ لوگ متاثر ہوں، لوگ فریب کی زندگی بسر کریں۔ آپ مسیحی لوگ جو ہیں، آپ فریب کی زندگی خود بسر کرتے ہیں، دوسروں کے بھی بسر کرنے کا میسج پیغام دیتے ہیں، جبکہ پوری بائبل میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا جو ہم کر رہے ہیں۔ بائبل کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم اگر مسیح یسوع میں ہیں تو ہر ایک چیز ہماری تبدیل ہونی چاہیے، اور پرابلم کیا ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے توبہ کو بھی نہیں سمجھا۔ یوحنا نے کہا، اے اجسام کے بچوں، تمہیں آنے والے غضب سے کیوں بھاگنے کو، کس نے بتا دیا بھائی کیوں بھاگ رہے ہو اجسام کے بچوں؟ بائبل میں الفاظ لکھے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ اور کن کو کہہ رہا ہے؟ جو اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آتے تھے۔ ہم آج تک مسیح یسوع میں نہ کبھی تجربہ کیا ہے، اور نہ کبھی ہم نے تجربہ کرنا ہے، اور نہ کبھی ہمیں ہو سکتا ہے۔
जो आपने तौबा की वो इमोशंस थे, जो आपने सीखा सिखाया वो सब इमोशंस, जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स, अदरवाइज और कुछ नहीं है। और कलाम में लिखा है कि जो शख्स जज्बात और एहसासात और फीलिंग्स के साथ चलता है वो इस तरह है जिस तरह की समंदर की लहरें होती हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले हम गलत क्या क्या कर रहे हैं। सो बात यह है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दुआ हमारे लिए क्या कर सकती है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुआ हमारे लिए क्या कर सकती है। लोगों से मैंने बहुत दफ़ा सुना है दुआ हमारी जान है, हाय हाय जान, दुआ हमारी कुव्वत है, वाह जी वाह तेरी दुआ ही कुव्वत है, दुआ से सब कुछ हो सकता है। अच्छा और क्या दुआ से हो सकता है? आसमान खुल सकता है, और क्या हो सकता है? तो फिर पूरी बाइबल चाहिए लिखा होना चाहिए सारे काम छड्डो बस दुआ करो बस गल खत्म। जे दुआवां नाल कुछ होण लगे ये तुहानू भी पता है दुआवां नाल कुछ नहीं होंदा, लेकिन तुसी फरेब च रहिंदे हो। दुआ करवाना तुहानू अच्छा लगदा ते दुआ करना तुहानू की लगदा? अच्छा लगता है। जिंदगी चेंज करना बुरा लगता है। कोई शख्स अगर कोई घर में है ना, कोई मैसेज सुन रहा है तो वो ये नहीं सुन रहा कि वो गुनाहगार है इसलिए सुना, वो ये सुना कि अच्छा ये कोई नवी गल, शायद ये वसीले बरकत मिल जाए, शायद वो वसीले बरकत मिल जाए, शायद इंज बरकत मिल जाए, शायद उंज बरकत मिल जाए। बरकत इंसाना को नहीं मिलती ना खादमा को मिलती है। कलाम मुकद्दस का एक आम सा असूल है जिसको हम समझते नहीं हैं कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाम फिशानी से, इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब में लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाम फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इख्तियार के साथ अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको क्या करेगा? सरफराज करेगा। बात सरफराजी की नहीं है, बात ये है कि बरकत अगर आप बात करते हैं तो ब्लेसिंग जो है वो कोई लेने का कोई तरीकेकार नहीं है, सिंपल खुदा के कवानीन पर अमल करना। शैतान जो है जो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, मैं इसको यही कहता हूँ, हालेलुया। शैतान ते ना ईमानदार बड़ी कचीची चढ़ दी है। और मैंने देखा है लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, शैतान का बहुता खौफ जे। तुहानू पता खुदा का डर है या शैतान का? सही दसना शैतान का ही है, तुसीं मनो या ना मनो। ईमानदार हो, बड़े बड़े पादरियां नूं शैतान तो डर लगदा जे, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੋ। ਕਿੱਥੇ ਭਜਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦੋਗੇ? अच्छा चलो ठीक है जी, शैतान भाग जाता है। कलाम में लिखा है शैतान का मुकाबला करो वो तुमसे। कित्थे भज के कित्थे जाता है? किसी ने दूसरे में वड़ जाता है। कभी शैतान तुहाडे सामने आया? किसी ने आके ने कहा भाई मैं शैतान हूँ तो मैं तुहानू डरान आया। कभी किसी को इंज दा कोई वाकया किसी नाल होया? वेले तुहाडी कोई बुनियाद ही नहीं है, एवं शैतान दे लाला कराया जे। वो ये नहीं पता होंदा वो शैतान शतून तो है भी या नहीं। वो पर उत्थे नहीं होंदा जिथे तुसीं होंदे, क्योंकि उत्थे तो तुसीं होंदे हो। हालेलुया। तो ये है कि कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। क्यों भागेगा? उसकी ये वजह नहीं है कि आप मुकाबला करो, उसकी ये वजह है क्योंकि आपने रूह के हथियार पहने हुए हैं। अपनी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए पौलुस ने ये कहा था कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो। अच्छा हथियारा में दुआ का कोई जिक्र नहीं कि भी कोई हथियार है किसी किस्म का। वो एंड लिखा है रूह में हमेशा दुआ में मशगूल रहो वगैरह वगैरह, जो ये इफ्सियों के ख़त में आखिरी बाब में ये लिखी हुई हैं। लेकिन ये है कि हम सोचते हैं कि वो ये या तो वो है, तो यार लोगों की तो कोई बुनियाद ही नहीं ना, उन्होंने तो पता ही नहीं। अब शैतान के बारे में भी हमें यही पता ना कि बड़ा डरावना जो है जो होगा। मैं डिटेल च नहीं जावांगा क्योंकि सानू जो सारी जिंदगी च बन चुकी ने खिचड़ियाँ ये रब ही ये दूर करते करते नहीं तो नहीं हो सकती। सो जो मसीह यीशु में अब वो क्या है? नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो सब नई हो गई। आपके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो नई हुई थी या हैं या हो रही है? सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमारे अंदर कौन सी नई चीज़ें आई हैं जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं? वो लिखा है कि सब चीज़ें क्या हो गई हैं? बोलो, समझ लग भी रही है यार मैं की कह रहा? बस की नवे तो हो गया, तौबा तो कर लीए। पुरानी चीज़ें कौन सी हैं? ओ भाई सिखियां गल्लां की गुनाह करना जी, ये पुरानी चीज़ सी। ये नहीं जी, पुरानियां गल्लां, पुरानियां हरकतां, पुरानियां आदतां, पुराने रवैया जात, पुरानी सोच, पुराना रहना सहना, उठना बैठना। यीशु तो जदों दूर सो आंदे उदों भी चर्च लेट सो, यीशु विच आके भी गैर जबाना बोल के भी आंदे फिर भी लेट सो। तो फिर आप में नया क्या है? क्या यीशु ने आपको नया दिया? क्या कुछ भी नहीं नया दिया,
کیونکہ یسوع آج تک آیا ہی نہیں ہماری زندگی میں, آیا میں ایسے ڈرامے لائے نے. جب آپ یسوع میں نہیں تھے ہدیہ تسی ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? وہ کسی اندر کو پائی ہے دسو. میں پچھلے سنڈے بھی جیسے بتا رہا تھا کہ جب ہماری روحیں بنی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہم آسمان پر کس طرح رہتے تھے, کہ پتہ ہے, لیکن جب ہم زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو اب ہم زمین کی عادتیں کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف زمین کا ہی پتہ ہے اور ہم اس طرح کے ہیں. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم یسوع سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارا رشتہ ناتا جو ہے وہ دنیا میں تم نے رہنا ہے, لیکن دنیا جیسے کام نہیں کرنے. دنیا کس کے پیچھے بھاگتی ہے؟ بولیں, دولت کے پیچھے. ہم کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کہہ دو یسوع پیچھے ہیں. ہفتے بعد آ جاندے تو پھر میں یسوع پیچھے بھجنا, پتہ نہیں کہڑا یسوع تہاڈا جڑا ہفتے بعد ہی تانوں کہندا میرے پیچھے آ جائی. جب خدا یسوع ہمیں نجات بخشتا ہے, میرے لفظوں پر غور کریں, میں نہیں کہا جب تسی توبہ کر دو, نہیں. جب خدا یسوع ہمیں نجات بخشتا ہے تو نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گناہوں کی معافی. نجات کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے رہائی, چھٹکارا, آزادی. جب آپ کو خدا یسوع نے نجات بخشی ہے کہ آپ کو کیا خدا یسوع نے دنیا سے آزادی دلائی ہے یا نہیں؟ تو دنیا اندر تواڈے اندروں کیوں نہیں کڈی؟ اے تواڈا پتہ کیڑا حال جے اسرائیلیاں والا. خدا نے کہا او موسیٰ یار ایک میری گل سن, اے بندیاں نو نہ ویکھ میں مصر چوں کڈ لیتے, اے مسیحاں نو میں نجات دے دتی آ, پر انہاں میں دنیا وچوں تو کڈ لیا, پر دنیا انہاں وچ نہیں نکلی. یہ دنیا وچوں تے میں چنے ہوئے نے, پر دنیا انہاں دے اندر رچ بس گئی ہے. دنیا میں رہو, دنیا جیسے کام نہ کرو. اگر آپ کی زندگی میں ابھی بھی مصر بسا ہوا ہے, مصر میں کیا اسرائیل کو ملا؟ بیابان میں لوگوں کو بھوک لگی تو موسیٰ کے پاس آ گئے. موسیٰ کی ساڑھے تو بچیاں نے اتنے بیابان چلایا, بیویاں وغیرہ وغیرہ جو بھی اسی اتنے مرنا ہے. اور مصر چ قبراں نہیں ہیں, سانو اتنے کھیرے ملتے سن, گوشت کھانے ہاں, اے کرنے وہ کرنے ہاں. تسی بھی کہندے او لے جدو توبہ کر لئیے اونے پادری نجم کی کہہ رہے دنیا داری نو چھڑ دو, چنگی پلی وے ایڈی کمائی کریے, پیسے آندے نے, کمیٹیاں پانے, اے کرنے. اوئے سر تواڈے اندر جے کوئی پادری تانوں دسن والا نہیں تسی خدا دے بیٹے بیٹیاں ہو, ایڈی جلدی نہ بنو. کے اندر ہرس تھی دنیا داری کی, دنیا کی چیزوں کی. ایمانداروں کے اندر تو نہیں ہے نا. بولو اپنے آپ نو ویکھ کے دسو. خداوند دن نو اسرائیل وچ کنج رہندا سی؟ بادل کی شکل میں. رات کو یعنی کہ دن نو بھی رہندا سی تے رات نو بھی, انہاں دے وچ درمیان رہندا سی. تے تواڈے تے وچ یسوع رہندا ہے تے اتنی ہرس کردے ہو, اتنی خواہشاں دے مارے. وہ دولت, وہ پیسہ, وہ ٹائم, وہ وقت اور رشتے دار, وہ ہرس کر کے وہ قوم اتنے بیابان چ مر گئی. وہ پشت ساڈا بھی یہی حال ہونا ہے. اسی بھی وہ وعدے کیتے ملک وچ نہیں جانا, دنیا وچ ہی مر جانا ہے. کسی نو میرے کلام دی کوئی سمجھ نہ لگے, انہوں بس ایک سمجھ لگ دیو لے ابے لفظ کے استعمال کرتا ہے. تسی حالے میرا کلام سنیا نہیں, میں تو اس تو بھی سخت لفظ استعمال کرنا کیونکہ منو تسی مقرر نہیں کیتا. سو بیابان میں چرچ ہے, یعنی کہ اسرائیل کو بھی چرچ ہی کہا گیا, پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کہا گیا ہے. تو اگر وہ بیابان میں یسوع یا یہوہ ان کے درمیان میں ہے اور مہیا بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود چیزوں کی خواہش ان کے زندگی سے ختم نہیں ہوتی, تو آج بھی سیم ایسا ہی ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش مٹ جاتی ہے, لیکن خداوند کی مرضی ہمیشہ کیا رہتی ہے. ہاللیلویا. آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں اور دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر تہاڈا کوئی علاج نہیں ہے گا. تانوں نہ توبہ دی ضرورت ہے, نہ کسی چیز دی ضرورت, بس تانوں ایسی خوراک دی ضرورت ہے جہاں تہاڈی صفائی کرے. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم چیزوں کو نیا کر سکتے ہیں. ہم کس طرح چیزوں کو نیا کر سکتے ہیں. جب آپ یسوع میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یسوع کیا چاہتا ہے, یسوع کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ اپنی سولی چک تے میرے پیچھے ہو لے. یسوع میرے ماں پیو دا کی بنے گا؟ اپنی سولی چک میرے پیچھے. یسوع ایک منٹ گل سنے, میرا ہالے ماں پیو زندہ ہے, جدو میرا پیو مرے گا میں دفن کر کے تیرے پیچھے آواں گا. اپنی سولی چک تے میرے پیچھے آ جا, جو کچھ تیرا ہے بیچ کے میرے کول آ جا. یسوع بچے بھی ویچ, چھوٹے چھوٹے بچے تو دیتے ہیں نا. میں بڑا مجبور, میری بیوی ہے, میرا بندہ وہ میرے گھر والے ہے. تو یسوع تانوں کہے گا ہاں جی کوئی گل نہیں پتر, ٹھیک ہے
ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਐਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲੇ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ नहीं चीज़ें सही हो सकती हैं। ओ भाई ये चीज़ें ना सही होनी है और ना इनके वो सही करने के पीछे भागो। भागना है तो उस मौत से भागो जो आपके अंदर है, उस तारीकी से भागो जिसको आप नूर समझ रहे हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नया होना होता क्या है, नया किस तरह हो सकते हैं। पहले जब आपने तौबा की, खादमों से जो कुछ सुना अपने अंदर स्टोर करते रहे, आयता फलाने को सुन लिया, आयता फलाने को सुन लिया, फलाने को पादी को सुन लिया, ऐ कर लिया वो कर लिया, तो खिचड़ी बना के ना रूहानी रहे थे ना जिस्मानी। लोग बड़ा पता नहीं कहते तो शो मार दे, मैं फलां हादम को सुनती हूँ या सुनता हूँ, या केड़ा को मार का माल है, कभी अपनी जिंदगी अपने रब दी भी सुन लिया कर। फिर आज तक चुकते फिरते भजते फिरते आज दा मतलब है, आज दा मतलब। मैं तो एक गल दसना, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਣੀ ਆਇਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। फलानी जगह लिखा, मैं पूरी बाइबल की गल करना। पैदाइश से मुकाशवा तक 66 किताब है, 66 किताबों में कितने मौजज़े दुआओं से हुए। एक वो एलिया ने ना दुआ की थी, आसमान खुल गया, वो तो पीछे लिया कि खुदा ने क्या एलिया ने अखियब ने जाके क्या कि मैं आसमान बंद कर दूंगा, फिर क्या अखियब ने जाके क्या कि मैं आसमान हुण खोलण वाला, वो खुदा ने पहलू कह दिता सी, वो वेट कर रहे सी, दुआ नहीं सी कर, पर असीं उहनूं दुआ दे ना देने, तुहाडी कोई बुनियाद नहीं, इसलिए आज तां अपनी कोल ही रखिया करो। यीशु ने किन्ने मौजज़े दुआवां नाल कीते, तुसीं कहो भाई साडी भाई साहब जी, यीशु ने कितने मौजज़े दुआ से किए, किन्ने मौजज़े कीते होणगे। चंद एक आप मौजज़ात देख सकते हैं, चंद एक, ते तुहाडा हर मौजज़ा ही जिहड़ा वो दुआ तो शुरू होंदा, दुआ तो खत्म होंदा। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੁਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੁਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਬਸ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ। हालेलुया। कि खुदावंद यीशु हमें जो है वो इस तरह का नहीं बनाना चाहता जिस तरह के हम बने हुए हैं। खुदावंद यीशु जब आपको लेता है तो उसके बाद वो करता क्या है, सबसे पहले आपको जब निजात का तजर्बा बख्शता है तो वो अपने भेद खोलना शुरू करता है। आप अपनी जिंदगी किन चीज़ों पर गुजारे हैं, इंफॉर्मेशन पर या रेवलेशन पर, यानी कि आसान लफ्ज़ां विच मालूमात दी बेस से तुसी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो या खुदावंद यीशु दे भेत दी वजह नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। हुण तुहाडी बला तो मैं की गल कर बैठा, ये की पैसा हुंदा इनफॉर्मेशन वाला की जे, सुन लो मालूमात की है। मैं फलां पाजी को सुनिया सी भाई तोबा नहीं करोगे दोज़ख च चले जाओगे। हाँ तोबा हुण कर लेनी चाहिए। मैं फलां तो सुनिया सी जी दवोगे ना तो बरकत आएगी, हाँ मैंने दे देना चाहिए। मैं फलां को सुनिया सी कि दुआ करोगे ना तो सारे काम हल हो जाएंगे। ए जे इनफॉर्मेशन रेवलेशन नहीं, ये भेत नहीं जे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭੇਤ खुदा दा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ है। ਤੁਹਾਡਾ उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीज़ तब्दील कर देंदा है। खुदा यीशु दी ज़ात दा भेत। तोबा तुसी कीती होएगी, ये नहीं मैं कहता तुसी नहीं कीती, तुसी तोबा नहीं तोबा करा दी होएगी, पर तुहाडे उत्ते यीशु दा भेत नहीं खुलिया। यीशु दा भेत जिदे ते खुल जांदा है उहदे लई ज़मीन दियां चीज़ां कूड़ा किरकट हो जांदियां ने। मैं तो कभी सोचता हूँ लोग बड़े आयतां लई फिरदे ने। मैं तो वैसे तुहाड़ियां बुनियादां लाण वालियां मेरियां गल्लां ने। चलो इन्नियां कोई रसूल दा किसे पूरी बाइबल विच लिखिआ है, रसूल इंज खलो जांदा हुंदा सी
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆਏਗਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆਏਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਠਹਿਰੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ हैं, बस ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ हम कभी नए हुए ही नहीं है। ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, पर नवे मखलूक क्यों नहीं बनते? खुदा यीशु को इससे लेना देना नहीं है आप कितनी दुआ करते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है दुआ नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुसी सोचना है। मेरा काम है कलाम सुनाना। जो बाइबल में किसी ने नहीं ना दसिया दुआ के बारे, तो मैं भी मुंह खोलना, ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप की बात है, ये किसी से सीखने सिखाने की बात नहीं है। पहले 3000 लोगों को किसने बता दिया कि आपको इस तरह करना है? खुदा यीशु की जात का जब भेद खुल जाता है तो आप उस तरह के हो जाते हैं, क्योंकि जब यीशु आपके अंदर आता है वो आपको अपनी शक्लो शबीह पर ढाल देता है। कई ना बस इतों तक भाई गल लो जी पादरी हो गए, किंज दे कपड़े पाए ने, पादरी हो गए किंज दे वार रखे ने, पादरी ओ खुदा दा खौफ कर, तेरी जिंदगी में जी शैतान तेनू की कहना है। खुदा यीशु आपकी जात को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। साढ़े तो लोगों का एडा बुरा हाल है, कोई पादरी थोड़ा साफ हो जाए तो उन्होंने कहते हैं ये फैशन करता है, तो जे पादरी बहुत गंदा हो जाए तो उन्होंने कहते लै वे पादरी का मुँह भी नहीं सी धोता, वे कपड़े पाटे पा। साढ़े लोगों का वैसे बुरा हाल है, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग ने, एवं जिसे ना गल करनी है तो भाई मैं भी दुनिया च मौजूद जे मैनू भी वेख लो, तेरा कोई नहीं तेनू कोई नहीं वेंदा। हालेलुया। कि आपके अंदर अगर यीशु है तो वो आपको दुनियादारी में नहीं जाने देगा, नहीं रहने देगा। तो असी की हाँ? असी दुनियादारी में फसे या नहीं फसे? आज मेरी एक बात सुन लें, दुआ करना, चर्च आना, शायर बानी ले लेना या हदिया दे दू देना, इन्हां दी कोई अहमियत नहीं है उन्नी देर तक जिन्नी देर तक सारी जिंदगी च यीशु नहीं होंदा। अगर यीशु है वे तो ये चीज़ां करते हो तो फिर तुहानू पता चलेगा तुसी क्यों कर रहे हो, और अगर नहीं तो फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जिन्हों तुसी सिर्फ फॉलो करते हो, और इसलिए तुहाडी जिंदगियां ते इंपैक्ट नहीं करती, इसदा असर नहीं। इन्फॉर्मेशन तुहाडी जिंदगियां ते असर नहीं करती, रेवलेशन तुहाडी जिंदगियां ते असर करदा, भेद खुदावंद दा असर करदा। लोग खादमों पर बड़ी बात करते हैं, अगर खादम वैसे नहीं है जैसे मैंने पहले बताया तो कलीसिया कड़ी उंजदी है, कलीसिया भी तो उंजदी है ना। बोलो जे खादमा च दुनियादारी है, दौलत है, तो जेडे कहते हैं खादम भाई जी अमीर नहीं हो तो उन्होंने कोल पूछो, वो तो दौलत पिछे मरदे जे भजदे जे। तुहानू तो जवाब देना नहीं आता, मैं तो कहना मैं इसलिए किसी ने गल ही नहीं करता, क्योंकि मैं किसी ने गल करना ही नहीं चाहता। अगर खादमीन दौलत के पीछे भागते हैं तो जो ये कह रहा है वो नहीं भागता। बोलो इसलिए खादमा के बारे मुँह खोलना बंद ही रखा करो, बेहतर है तुहाडे लिए। तुहानू कोई हक नहीं कि खुदा के खादमा ते गल करना, वो अच्छे ने बुरे ने ये तुहाडा काम नहीं। तुहाडा ये काम है सच्चाई की तलाश करो ताकि सच्चाई तुहानू की करे, आज़ाद करे। हम यीशु में कब नए होंगे, कब हमारी आदतें चेंज होंगी, कब हमारी ज़िंदगियों पर खुदा यीशु अपने भेद खोलेगा? जब आपके अंदर यीशु अल मसीह का भेद खुल जाता है, आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है? आपके अंदर से खौफ खत्म हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई यीशु अल मसीह है तो आपकी ज़िंदगी से खौफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी से खौफ खत्म हुआ या नहीं? नहीं हुआ। बुरे हालात का खौफ है वे ਇਹਦਾ मतलब है यीशु साढ़े अंदर नहीं हैगा। शैतान की तो मैं गल ही नहीं ना करता, वो बड़ी दूर की गल है। पहले अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर लो, शैतान नाल फेर जाना। शैतान इंज नहीं तुहाडे के आके तुसीं एडे ही समझदार हो गए हो। शैतान तो मैंने गल याद आ गई, दुआ से शैतान भाग जाता है। अजीब साड़ियाँ हरकतां ने, किहड़ी दुआ नाल शैतान भजदा है? कहंदे इधरों दुआ करदे हो, थोड़ा जा अपने आप तसल्ली, थोड़ी जी तसल्ली होंदी है। हाँ दुआ की ना, वेखो मैनूं हुण थोड़ा मैं आराम विच तो अगले हफ्ते की अगले दिन की वो फिर दुआ करो, क्यों वो फिर आ गया जे। ये तुहाड़ियां दुआवां इंज दियां जे, दुआ कर लैनी है शैतान ने भज जाना, उन्हें फिर आ जाना। भाई यीशु के पास जब शैतान आया तो यीशु ने दुआ नहीं की थी कि दुआ की सी, यीशु ने उसको कलाम की सच्चाई सुनाई। और सच्चाई क्या थी? शैतान जो तुहाडे कोल आंदा ये नहीं आके तुहानू कहता लै भी तैयार हो जा, मैं तेनू डरान आया हूँ, मेरे ना तू जंग कर। शैतान आपको ये नहीं कहता, वो आपके सामने दुनिया की चीज़ों को रख देता है। आदम हवा के पास आया, फल रख दिता, वे कितना खुशनुमा है, वाह वाह वाह। हवा ने भी क्या क्या बात है, अक्ल बख्शने के लिए क्या है ये? बोलो बोलो, अच्छा है।
ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਸਹਾਰੇ ਨੇ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 5-6 ਆਇਤਾਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? क्योंकि ये तो फिर काम खराब कर देता है। आपके पास इख्तियार है, दुआ में जो कुछ मांगोगे आपको मिलेगा। यीशु ने ये कहा है। तो यीशु ने तो नाल ये भी क्या, दुनिया की चीज़ा ना मांगो, फिर की करोगे? किधर भजोगे? आयता लाभते फिरोगे, फिर आयता दे आप ही जवाब देवो, आप ही लवो, क्योंकि उन्हें हालात तुसी रहना। इब्लीस आज भी सेम इसी तरह हमें जो है वो करता है। और यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात है, अय्यूब को जब वो आजमाने आया, ये दो बड़े अहम वाक़े हैं। उसके पास इब्लीस डायरैक्ट ही आ गया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕਾਮਤ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਅਯੂਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हालेलुया। कि वो खुदा से परमिशन ले रहा है कि खुदा अगर तू अपना हाथ उससे खींच ले तो वो तेरे मुंह पर क्या कर देगा? तेरी तौहीन करेगा, तेरा इनकार करेगा। और इब्लीस ने आजमाया अय्यूब को किस तरह? बच्चे ले या ना ले, यानी कि मार देते। फिर दौलत चली गई या ना गई? कारोबार चला गया, माल मेशी चले गए, ईवन ਉਹਦੇ बदन ਨੂੰ भी दुख होया। इब्लीस यही कर सकता है। और आगे हम ये दो बंदे हैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस में जिनके पास खुदावंद, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस खुदा से परमिशन लेकर आता है। तो साढ़े ईमानदारां दा एडा बुरा हाल जे, इन्हां नहीं पता नहीं किन्नी कोई शैतान नाल जंग करनी, इन्हां दी जान ही नहीं छुटदी पई। वो छाड़ दो ये ख्याली शैतान नाल जंग करना, क्योंकि यीशु तुहाडे उत्ते जदों भेद खोलेगा असल शैतान है तो फिर तुसीं कहोगे यार मैं तो आप ही शैतानियां करदा फिरना ते मैं शैतान नूं दूर करा रहा। हालेलुया। लिखा है रूह खुदावंद यीशु को बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस के हाथों आजमाया जाए। कैसी ये, जब वो ले गया तो कौन लेकर गया था? बोलो, वो बोलो तो सही। खुदा दा रूह किनू लैके गया? यीशु नूं। क्यों लैके गया? ताकि इब्लीस दथो। ते अयूब कोल किदी इजाजत लैके शैतान आया? खुदा दी। क्यों? अयूब नूं की करे? आजमाए। अच्छा, हुण दूसरी गल, यीशु ने लिया 40 दिन वो बियाबान च रहा ताकि आजमाया जाए। क्यों आजमाया जाए? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसलिए यीशु को वो बियाबान में खुदा का रूह ले गया ताकि वो आजमाया जाए। क्यों आजमाया जाए? क्योंकि वो कामिल इंसान था, उसने अपने आप को खाली कर दिया। और खुदा यीशु ने उन 40 दिनों में शैतान पर दुआ के वसीला से फतह नहीं पाई। पादरी ने कमा देना। देखो जी, लिया वो जब बियाबान से वापस आया कुव्वत से भरा हुआ था। यह जाहिर 40 दिन थे वो यानी कि दुआ ही करता है ना। 40 दिन कोई यीशु में ख्वाहिशां नहीं आई होंगी, कोई भुख नहीं लगी होगी, कोई बदल। 40 दिन यीशु ने कुछ नहीं खाधा तो उन्होंने रोटी का लालच दे रहा। तो यीशु कहता कि 40 दिन अगर मैं बियाबान च रहा वा ना तो मैं जिंदा रहा वा ना तो मैं रोटी की वजह नाल नहीं रहा, बल्कि खुदा के मूँह की गल्लां की वजह नाल। तुहाडी बला तो मैं की गल्लां करना वा, तुहाडे ज़हन च भी नहीं गल्लां आ सकदियां, कदी जिंदगी में भी ना सोचना कि खुदा तुहाडे तो कोई नवा भेत खोल ही दे। एनीवे, सो ये है कि जब वो आजमाने के लिए आया तो खुदा यीशु ने दुआ नहीं की, खुदा यीशु ने कुछ नहीं किया। खुदा यीशु ने सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बोला। असीं की करने आ? यीशु के नाम से निकल जा शैतान, शैतान वे दूर हो जा प्लीज, हुण तू दूर हो जा। चलो यीशु के नाम से नहीं, प्लीज के नाम से ही हो जा। तरले पाई दे ने,
गड़गड़ाई दा रोई आई दा करीदा वो करीदा अगर तुहाडे अंदर सच्चाई है तो याद रखो तुहानू शैतान छू भी नहीं सकदा तुहाडे नेड़े भी नहीं आ सकदा तुसी कहंदे ईमानदार यीशु अंदर लैके कहंदे शैतान तुहाडा बर्बादी करदा तुसी अयूब हो तुसी यीशु हो तुसी कुछ भी नहीं तुसी यहूदा अक्सर युती हो हालेलुया सो बात यह है कि यीशु मसीह ने भी खुद ये साबित किया कि उसको दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं है ते असीं खादमीन की साबित कर रहे हैं भाई मन्नू भी दौलत नाल प्यार है तो तुसी भी अमीर हो मैनूं पता तुहानूं गल्लां हज़म नहीं होणियां क्योंकि तुसी चर्च आंदे ही इसलिए होर तुहाडा कोई मकसद नहीं होर कोई मकसद नहीं कलाम कौन तुसी सुनन आंदे हो ऐंदा कलाम सुन के तो तुसी वैसे भी नहीं आना सो ये है कि यीशु ने खुद ये साबित किया कि चीजों का यीशु को कोई लालच नहीं है दुनियादारी से यीशु को कोई लेना देना नहीं है यीशु का किरदार मैं बता रहा हूं और पतरस ने देखा कि यीशु 40 दिन बियाबान च रहा ख्वाहिशां छड़ दित्तियां घर वालों छड़ दित्ता सारा कुछ छड़ दिता ते असीं भी सारा कुछ छड़ दिता साडी पहली स्टेज ते हो गई है पूरी एक दिन पतरस ने कहा यीशु असीं तो भी सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे आए हैं तो यीशु ने कहा किसी ने मेरे लिए ते अंजील दे लिए अज तक कुछ भी नहीं छड़िया साड़ी सारी तालीम ही उल्ट होई पई है सारी तलीमा उल्ट कर बैठे हो फिर कहते हो सासी बड़े रूहानी हैं कोई रूहानी रूनी नहीं फिर पतरस ने देखा कि यीशु इस तरह की जिंदगी बसर करता था अब उस पर कलीसिया की जिम्मेदारी अहद होगी क्योंकि यीशु ने यह कहा पतरस आगे जाकर तूने जो है वो कलीसिया को लीड करना है शिगिर्द भी यही समझे थे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा वो रेवलेशन क्या था लेकिन हम सीधा सीधा इसको फिर पतरस जब कलीसिया को सिखाता होगा तो क्या सिखाता होगा अगर वो गैर कौमों से नफरत करता था कलाम नहीं सुनाता था तो उसको वो यीशु की सारी बातें याद थी कि एक दफ़ा एक औरत आई कनानी औरत से यीशु ने क्या लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है इसका मतलब यीशु का कहने का ये मतलब है कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं आया हाँ चलो जी गैर कौमों के लिए अंजील की मनादी नहीं करनी देखो तुसी वाले लभदे हो फलानी जगह ले मैं तो वैसे दसी आ रहा कि पतरस ने यीशु को देखा और उसके मुताबिक उसने तालीम दी तुसी किनू वेखिया दसो हाँ तुसी किसी पादरी नूं वेखिया फलाना इंज करदा फलाना इंज करदा फलाना आ करदा फलाना करदा तुसी भी वो कर दे बस और कुछ नहीं इसलिए तुहाडे अंदर दुनियादारी खत्म नहीं हो सकती भावें तुसीं कलाम सुनो तो जो मर्जी करो छड़ दो दुनियादारी ये कुछ नहीं जे रखिया कि रखिया कहो भाई साहब ये सारा कुछ रखिया सो हैरानी में सो पतरस जब वो तालीम देता था तो उसके सामने यीशु का किरदार था आपके सामने सिर्फ आयतें हैं और वो भी आधी अब जो मैंने आखिरी हवाला पढ़ा था कि जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैंने बहुत सारे खादमीन से ये सुना कि इसका मतलब ये है कि जो आप नहीं कर सकते वो भी आप कर लोगे किस तरह नामुमकिन कमानु भी कम जरा वो मुमकिन कर दोगे जबकि पलूस ये कहता है कि मैंने दुख में रहना सीखा है बढ़ना सीखा है कम होना सीखा है मार खानी सीखी है फाका करना सीखा है जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसमें मैं झुक भी सकता हूँ पस्त भी हो सकता हूँ उसमें मैं दुख भी सह सकता हूँ उसमें मैं सारी चीजें छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि वो मुझे कुव्वत देता है सो उसमें मैं दुनियादारी से भी आजाद हो सकता हूँ इस मुझ में इतनी पावर आ जाती है तुम्हारे अंदर यीशु है वे पावर किथे जे को नहीं क्योंकि यीशु है ही नहीं तुम्हारे को सिर्फ दुआवां ने सिर्फ 2-4 गल्लां ने सिर्फ 4-5 आयतां ने इस अलावा कुछ नहीं है कभी हकीकी यीशु का तजर्बा करके वेखो तुहानू पता चले हकीकी यीशु जो जिंदगी च आंदा है तो फिर जिंदगी किंज दी हो जाती है जिंदगी इंज दी नहीं जी होंदी फिर आयता नहीं जे तुसी बोलते फिर तुसी ये नहीं कहते मैं यीशु से प्यार करता हूँ मेरे दिल में यीशु रहता है हाँ मेरे दिल च यीशु रहता काम मेरे शैताना वर्गे हालेलुया बड़ी मज़ेदार गल है अगर तुसी हकीकी तौर पर अपने आप को वेखो ना तो असी इन्ने तंग ते आवाज़ार लोग है ना इन्ने तंग ते आवाज़ार लोग है ना कि साढ़े दिल का कोई हाल पुछ के नहीं वेखा खास करके जेडे दुआवां ते लगे जेडे नामी मसीह भावें आदम ने तो भावें जेडे मरदे वो अंदरों बिल्कुल खोखले बिल्कुल वो पंजाबी कहते बुसे हुए बिल्कुल मुरझाए हुए बिल्कुल खत्म हुए कोई अंदर जिंदगी नहीं कोई अंदर पैशन नहीं कोई अंदर जोश नहीं
कोई अंदर कुवत नहीं। मैं क्यों कह रहा, इन्हों का चर्च आना वेख लो मजबूरियां, चर्च आने में ने मजबूर, दुआ करवाते ने मजबूर, कलाम सुनते सुनाते ने फिर भी की ने मजबूर ने। कदी दुनिया के कम्मां ते गालिब नहीं आए। बीमारियां ते गुरबत ये तो बड़ी दूर की गल्लां ने। कदी अपनी ख्वाहिशां ते गालिब नहीं आए। किदा किदा यीशु ते ईमान है वो साडा मुहैया करने वाला है। यीशु ते ईमान है मुहैया करने वाला है। फिर काम नूं इन्ना क्यों टाइम देंदे हो? जी यीशु ने मुहैया करना तो कमियां दे वसीले भी तुहानूं मुहैया कर देणगे, फिर की करोगे? नहीं, वो एलिया बारे सी इख्तियार कोई नहीं तुहाडे कोल रही, कोई दुआ नहीं कि तुहाडी काम कर दुआवां वो टुट गईयां, सारा ईमान भज भुज गया। बदलो हुण अपने आप नूं। तुहाडे कहण दा मतलब ये वे ਜ਼ਬਾਨ तो मैं कह रहा कि यीशु मैनूं मुहैया करता है, लेकिन असल च मैनूं काम ही मुहैया करता है। ये सच है या नहीं? दौलत दे पुजारी असीं दौलत की खिदमत करने हैं। दौलत ना होए तो असीं चर्च भी छड़ दईए। किसी को पूछना आजकल चर्च नहीं आ रहे, वो ना आजकल काम पे वो बहुत टाइम लग रहा है। मैं वो तो खलो गया, मैं कर काम मेरा ओवर टाइम ना। मैं इन्ना तुहाडा यीशु ते भरोसा है ना, इन्ना भरोसा बंद करो इधर ड्रामेबाजियां ते सीधा भरोसा होना जे है जे ना खलोवो अपने काम के अगेंस्ट। ठीक है, इन्ने घंटे मैं 7-8 घंटे जॉब करनी, इस तो बाद ओवर टाइम की गल होगी, मैं नहीं करना, मैं खुदा के घर जाना। करके वेखो तुहाडा लग पता जाए। तुसीं नहीं कर सकते, क्यों? तुसीं खुदा ना कभी ना चले हो, ना कभी खुदा तुहाडे अंदर आया, तो ना आना है। हालेलुया। तुसीं गैर ज़बान भी बोल लैनी है, गल्लां भी कर लैनी, सारा कुछ कर लेना है, एंड ते अपनी मजबूरी प्लेट च रख के पेश कर देनी है। सो अगर आपका वाकई खुदावंद पर ईमान है तो बुरे हालात में खड़ा होना सीखें, बुरे हालात से पहना सीखो। खुदावंद यीशु जो है ना वो हमें जब बियाबान में लेकर जाता तो उसका कोई मकसद होता है। असी बियाबान से जाना नहीं चाहते। बियाबान में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, बियाबान में आपको चीज़ें नहीं मिलती, खान पीन दिया चीज़ां नहीं मिलदियां, पानी छत नहीं मिलती। की उत्थे मिलती है? खाक, धुप, बर्बादी, उदासी, वैरानी। और ओहदे तो बचन लई ते असीं दुआवां करने आ। ओहदे तो बचन लई असीं की करने आ कि खुदा मुझे सिचुएशन विच ना पैन दई, खुदावंद वे मनु ए मुसीबत च ना पैन दे। चल जे पै भी गया इहनूं बस कढ लै, मनु मैं मारी जानी इत्थे। ते बाद च पता चलदा तू ते नहीं मरिया, तू यीशु वल्लों ही मर गया है। जब खुदावंद हमें बियाबान में लेकर जाता है तो वो इसलिए लेकर जाता है कि वो हमारे दिल को जांचता है कि हमारे अंदर क्या है। जब आप बुरे हालात में पड़ते हैं कभी भी ये ना कहें कि शैतान ने कर देता है। जब आप बुरे हालात में पड़ते हैं कभी भी ये कहें फलाने जादू कर देता। किससे भी ना गल करो। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। पहले पतरस के जो है वो 5वें बाब की 8 आयत में लिखा है कि अबलीस जो है वो शेर बब्बर की मानिद है। किसकी मानिद है? शेर बब्बर की मानिद। और दूसरा कुरिन्थस उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा है कि उसको जहां का खुदा कहा गया है। सो बेहतर यही है कि तुसी इहदे विच पिसन दी बजाय शैतान ते ना गौर करो। अयूब ने ये नहीं कहा कि मेरा सब कुछ शैतान ने ले लिया। उसने क्या कहा? जिसने दिया उसने ते असी की कहने आ, असी की कहने सही दसो भाई साहब जी दुआ करो। क्यों? आप रुकावटां ये पै गई ने। वो भाई खुदा आपको सिखाना चाहता है, आपको आजमाना चाहता है कि आप बुरे हालात में जब पढ़ते हो तो क्या करते हो। और इसलिए ईमानदारों को ये सोचना चाहिए दुनिया की चीज़ों के पीछे भजोगे तो फिर बुरे हालात जो पवोगे तो तुसी नहीं कायम रहोगे। क्यों? क्योंकि तुहाडी बुनियाद कुछ भी नहीं हैगी। मैं बड़े बड़े ईमानदार वेखे ने। एक वक्त आंदा ओ हालेलुया यीशु लिए मैं साजी सारा कुछ छड़ दांगा, वो छड़ दांगा। थोड़े जे बुरे हालात आए वो ना यीशु रहा तो ना वो रहा तो वह भी यीशु दे नाल ही चला गया। हालेलुया। सो ये है कि आखिर में मैं आप सबको यही बताऊंगा जो मसीह यीशु में वो क्या है? नया मखलूक है। क्या नवा मखलूक बनना चाहता? फटाफट नवा मखलूक हथ खड़ा करना या खलोना नहीं बनता। नवा मखलूक उदों ही बनता जो उहदे विचों नवे मखलूक वालियां सिफतां नज़र आंदियां ने। नवे मखलूक की सिफत की है कि वो दुनियादारी ना मुहब्बत चीज़ां पिछे नहीं भजदा, इधर उधर नहीं डिगदा, आयतां नहीं चुकी फिरदा, बल्कि जिहड़ा ईमान नूं कामिल करदा उहनूं वेंदा ते तकदा रहिंदा हैगा। भाईओ भैनों 2024 कोई आसान साल नहीं जे। आने वाले साल मजीद बर्बादी लैके आएंगे।
लेकिन सानू कायम रहना है। सानू की रहना है? कायम रहना है। किहड़ा किहड़ा यीशु विच कायम रहना चाहता है? जे तुसीं रहना चाहते हो तो उहदा एक ही राज है कि अपने सारे दिल नाल, सारी जान, अकल, ताकत नाल खुदावंद नाल की कर, प्यार कर। खुदाम यीशु की प्रेजेंस में खड़े हैं और हम सबको अब अपनी बुनियादों की तरफ आना चाहिए। हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद यीशु है। हालेलुया। हमारी बुनियाद ब्लेसिंग्स नहीं है, हमारी बुनियाद क्या है? यीशु है। हमारी बुनियाद खाना पीना नहीं है, हमारी बुनियाद रुपया पैसा नहीं है, हमारी बुनियाद दुनियादारी के काम नहीं है, हमारी बुनियाद दुनियावी चीजें नहीं है, बल्कि हमारी बुनियाद कौन है? कौन है? आज सुबह खुदा में यीशु को, खुदा में यीशु मैं भी नवा मखलूक बनना चाहना, मैं भी सारी चीज़ां छड्डण लई तैयार हाँ। यीशु अज तुहाडे अगे सवाल करदा है कि तू मेरे लिए छड्डण लई तैयार है? आज तुसीं यीशु को आए हो, जे तुसीं वाकई नवा मखलूक बनना चाहते दोवे हाथ चुको, कहो खुदा में यीशु आज मैं भी नवा मखलूक बनना चाहना वा। उच्ची आवाज़ नाल बोलो। और अगर तुसी नवे मखलूक बनना चाहते हो तो खुदा यीशु तुहानू की जवाब देगा? खुदा यीशु कहेगा कि छड़ दे दुनियादारी, मेरे पीछे आ जा, छड़ दे दुनिया दी चीज़ां नू, मेरे कोल आ जा। जिस तरह मैं उस अमीर शख्स नू कहा कि जो कुछ तेरा इन्हां नू छड़ के मेरे पीछे आ जा, जिस तरह मैं उस शख्स नू कहा कि तेनू अपने माँ बाप की फिक्र है और मुर्दियां नू मुर्दे दफन करन दे, तू मेरे पीछे आ जा। तो याद रखो अज यीशु सेम हर उस बंदे नू जेड़ा उहदे कोल आंदा है सेम यही जवाब देंदा है। दोवे हाथ चुको, बुलंद आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो। भाई साहब ने कोई अपने कोल कोई गल नहीं दसी, भाई साहब ने तो तेरे किरदार की गल दसी है, तेरी जात दी, तेरा जिंज दा तू है वो दसिया सानू, लेकिन मैनू क्यों नहीं समझ लग रही, मैनू क्यों नहीं समझ लग रही? बजाय यदि कि मैं अपने दिल नू चेंज करा, मैं क्यों अपने दिल नू सख्त कर रहा वा, मैं क्यों अपने आप नू आयतां नाल तसल्ली दे रहा, मैं क्यों अपने ज़हन च सोच रहा कि भाई साहब ने शायद गलत सुना दिता, भाई साहब ने शायद पता नहीं सी, भाई साहब ओ नहीं सी, भाई साहब ए नहीं सी। भाई साहब की गल छड्ड, अपने दिल नू वेख कि इबलीस तेरे दिल नू सख्त करता जा रहा है कि तू खुदा की आवाज़ जदों सुनना तो तू उन्होंने जेड़ा वो नफरत विच ले लेना। खुदा जिन्नू प्यार करता है उन्होंने छांटदा भी है। अज कलीसिया में छांटना किथे वे, अज कलीसिया में तराशना किथे वे। अज खुदा कलीसिया ने क्यों नहीं छांट रहा, अज खुदा कलीसिया नू क्यों नहीं तराश रहा? क्योंकि खुदा साडे दरम्यान ही नहीं, क्योंकि असी खुदा नू अपने दरम्यान रखना नहीं चाहते। असी चाहते हैं कि खुदा ना 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 तू ना सानू छांट, साडी एक्स्ट्रा चीज़ां लगियां रहन दे, तू ना सानू दस, सानू पता असी किस तरह चलना है, तू ना खुदा साडी रहनुमाई कर। खुदा कहता फिर लगे रहो जेड़े कम्मां ते लगे हो। लिखिया जिन्नू खुदा प्यार करदा है उन्नू छांटदा भी है, तराशदा भी है, उन्नू डांटदा भी है, ओदे गैर जरूरी डालियां नू कट देंदा है, हर वो चीज़ कट देंदा है जेड़ी फल विच रुकावट बनती है। अज ईमानदारां नू कांट छांट की जरूरत है और कोई भी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जो खुदा यीशु ने तो फिर कांट छांट क्या सी, फिर असी आयतां नाल ही अपने पत्तियां नू महफूज रखीदा। फल कित्थे ने, फल कित्थे ने? लेकिन अज तुहानूं मैं सारिआं नूं दसांगा खुदा यीशु दे वल आ जावो। साडे लई इहदे विच ही भलाई हैगी है, इहदे विच ही हमेशा दी जिंदगी है, इहदे विच ही आज़ादी है, इहदे विच ही नजात। दोवे हाथ चुको, सारे लोग उच्ची आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो, उच्ची आवाज़ नाल दुआ करनी शुरू करो।